So here I think elementary machine, advanced machine, again cannot recall, पहले स्मिथ है, वेल्डिंग है, प्रॉब्ली वेल्डिंग पहले है, स्मिथ है, यहाँ शायद फाउंड्री है, यहाँ कहीं प्रोजेक्ट शॉप है और फिटिंग शॉप है. Again I cannot recall exactly. But this is roughly how the layout of our workshops looks like. ऐसे ही? Yes, sir. सर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मिथ एक साथ हैं और फिर वेल्डिंग है. सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मिथ एक साथ है. चलो और फिर और उसके बाद वेल्डिंग है. चलो बस खैर है, थोड़ा सा इतना गुजारा कर लेते हैं. ठीक है. I'll just correct it. Okay, right. So let's say you want to make your projects in this particular workshop. ये workshop हमने इसलिए बनाई है ना कि आप लोग अपने projects का काम यहाँ पर कर सको. सही? Right. Yes, sir. Okay. So if you want to work on your project within this particular facility, would you follow the layout? Would you follow the sequence of the layout of these workshops, or would you follow your own sequence? सर प्रोजेक्ट के लिहाज से सीक्वेंस फॉलो करते हैं. प्रोजेक्ट के लिहाज से सीक्वेंस बनेगी. तो मतलब आप इस फैसिलिटी का लेआउट को आप फॉलो नहीं करेंगे. प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट में आप क्या कर रहे थे? उस फैसिलिटी के सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे ना, because that has been designed against that particular product that you wanted to make. यस सर. रिपीट करो ये बात. देखो जब हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड फैसिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने वही लेआउट, वही सीक्वेंस फॉलो किया जो उस लेआउट का सीक्वेंस था. क्यों? Because the layout had been designed while keeping the product in mind. Sahi? Here, this is not a facility that has been made for a particular product. Instead, this is a facility that has been designed for catering the needs of a wide variety of products. वर्कशॉप डिजाइन करते हुए ये पता नहीं था कि आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा. तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट एरियाज बना लिए और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद पेट्रोल शॉप, all the machines, all the people related to that were placed in this particular area. ऐसे ही है ना पेट्रोल शॉप. लकड़ी का कोई भी काम कराना हो तो आप बस पेट्रोल शॉप में चले जाओ, वहां पर मशीन्स और पीपल अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप वो लिमिटेड वेरिएशन के साथ एक पैटर्न्स बना सकते हो. ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन बेसिक लेवल के पैटर्न्स बना सकते हैं. ऐसे ही है. यस सर. ऐसे ही है ना. ओके. सिमिलरली everything related with welding has been placed in the welding shop. राइट सर. Okay, so what are we doing? We've allocated space to particular processes instead of a particular product. We've grouped the same type of processes and allocated a certain area to that particular, for that particular job. सही है? Yes, sir. अगर हमने पैटर्न नहीं बनाना, so you not go into the pattern shop. If you want to just carry out some machining and then carry out some welding, this is the sequence you're going to follow, and you'll say our product is ready. Another person who wants to make a pattern would go to the pattern shop, then he might just go to foundry, then he might just ask for some machining, and then he might go to fitting and say the product is ready. So I'm talking of two different kinds of products being made in this facility at the same time. The both of it following their own sequence. Are you guys with me now? Yes sir. ये बात समझ में आ रही है? Yes, तो हमने कैसे डिजाइन किया? हमने डिफरेंट प्रोसेस एरियाज को ग्रुप कर दिया और उनको स्पेस एलोकेट कर दिया. और हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट सीक्वेंस किसी भी प्रोडक्ट का क्या होगा. ईच प्रोडक्ट, ईच ऑर्डर that comes to the facility would define its own order, its own sequence. Understood? Yes sir. समझ में आ रही है? यस सर. यस. तो ये क्या है? लो वॉल्यूम फैसिलिटी है बट कस्टमाइज्ड फैसिलिटी है.
different variety of products have to be made over here. When we talked about machines over here, we said they are general purpose machines. We also said that the labor skills would be high. ये दोनों बातें हम लोग कर चुके हैं. Yes, sir. Yes. अच्छा, क्या ये सारी मशीन, सारे वर्कर्स हर वक्त इस्तेमाल हो रहे होंगे? No. No. It depends on the products or the type of products that are being made at the facility at that very time. तो यूटिलाइजेशन कैसी होगी? कम होगी सर. यूटिलाइजेशन कम होगी. Medium. मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इस फैसिलिटी में, तो इसका मतलब है हमें ज्यादा इन्वेंट्री होगी ना. जितने ज्यादा प्रोडक्ट एक वक्त में फैसिलिटी में बन रहे होते हैं, उसी के हिसाब से इन्वेंट्री भी बिल्डअप हो रही होती है. ज्यादा ऑर्डर होंगे तो ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही होगी ना. Yes, sir. Yes, sir. इन्वेंट्री क्या है? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या है? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वो चीज है जो अभी तक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन जिस पे काम शुरू हो चुका है, वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है या वर्क इन प्रोसेस होता है. ठीक, सिंपल डेफिनेशन. तो ज्यादा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है ना. प्रोडक्ट इन्वेंट्री लेआउट में क्या था? बस एक ही प्रोडक्ट बन रहा था, सीक्वेंस में बन रहा था, और वहां पर कम इन्वेंट्री चाहिए होती है. फाइनल फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री ज्यादा होगी मास प्रोडक्शन फैसिलिटी में. यहाँ फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कम होगी, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर तैयार होगा आप उसे शिप कर दोगे. मास प्रोडक्शन में जब डिमांड आएगी तब उसे शिप किया जाएगा. तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में मास प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ज्यादा होगी. इन अ प्रोसेस ओरिएंटेड फैसिलिटी, in a batch production system, the finished product inventory would be small. So again, thinking of the layout, how have we designed the layout? We have designed the layout based on the different process setups. We grouped different setups together. We've arranged different. We've arranged or we've grouped similar machines and equipment in a particular area, and hence the name process-oriented layout. नाम की समझ आई? Yes, sir. वहां प्रोडक्ट डिफाइन करता है लेआउट. यहाँ हमने क्या किया? सिमिलर मशीन, सिमिलर इक्विपमेंट को एक साथ ग्रुप कर दिया और इस एरिया का नाम रख दिया स्मिथ शॉप, वेल्डिंग शॉप. तो जब हम कहते हैं वेल्डिंग शॉप, तो वेल्डिंग रिलेटेड सारे काम इस एरिया में होंगे. Hence the name process-oriented layout. Let's think of another example. Hospitals. When you visit a hospital, all hospitals have got a certain layout. And one of those layouts for a particular hospital is being shown on the board right now, on your screens right now. ठीक है, तो मुख्तलिफ एरियाज है. अगेंस्ट रेडियोलॉजी से हमें क्या पता चलता है? सारे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह इस एरिया में कंडक्ट होंगे. फार्मेसी, अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो बस सारी मेडिसिन इस एरिया में मिलेगी. अगर आप बिलिंग फाइनेंस सेक्शन में जाना चाहते हो तो सारे फाइनेंस के लोग यहाँ पर बैठे होंगे. ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर बीइंग डन इन सर्जरी. तो ये प्रोसेसेस के थ्रू हमने लेआउट डिफाइन कर दिया ना. दिस कैन बी कॉल्ड अ प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट. Yes? Yes, sir. Okay, understood. Okay, now every person who visits this hospital, do you think they would even be following the sequence of this layout, or would that particular patient define his or her own sequence? His or her own sequence, sir. Would each patient define his or her own sequence? Yes, sir. Because everybody. Let's just look at the sequence for a particular patient. Again, not medical experts, so we will not comment on is the sequence right or not. But this is the sequence for a particular patient A who comes in with a broken leg. We'll go to we'll go for an initial inspection, and then he'll go to radiology to check where is the fracture, and then he might need surgery, and then he might need to be kept in the hospital for some days. He has to go to those private rooms or beds, and then he might need a pharmacy on exit, buy some medicines for his home, and then go to the billing section and come out as being treated. So treatment is complete.
Please note, we're not following to the sequence of the hospital. Again, another patient. Another patient comes in, has an inhalation inspection, goes to surgery, takes his medicine, comes back to the laboratory, takes some, he's been kept in the hospital for some days, and then he goes out. So we follow the sequence based on the demand. So if we say, if we happen to go to the hospital sometimes and we start observing people, all people follow their own sequence. They do not follow the sequence of that particular hospital. So again, a very good example of a process-oriented facility. Again, what's common between the two examples that I've given you? It's a high variety facility, which has been designed to cater the needs of different people who comes in with different demands. समझ आ रही है ये बात? ठीक है. Now, when we are designing process-oriented layouts, one of the things that we need to identify is what is the right location for a particular process area. Is this the right area for radiology, or should radiology be kept over here, or should we have radiology somewhere over here? So how do you think we will decide on that? हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि ये प्रोसेस एरिया किधर हो, वेल्डिंग किधर हो और स्मिथ शॉप किधर हो, और फाउंड्री किधर हो और पेट्रन किधर हो. ये तो डिसाइड किया जा सकता है ना लेआउट में. तो जब मैंने शुरू में वर्कशॉप में एक बड़ा बना दिया और ये डिफरेंट रूम्स एलोकेट कर दिए, और मैं आपसे कहूँ एक नया लेआउट डिजाइन करो, तो आप कहो कि यार ये बेहतर है कि फाउंड्री अगर इधर है तो पेट्रन इधर हो. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इस तरह ज्यादा बेहतर होगा कि पेट्रन और फाउंड्री बिल्कुल एक साथ हो? साथ हो तो अच्छा है. क्यों अच्छा है? बेहतर होता है सर. रिलेटेड है सर, मतलब पहले पैटर्न बनता है फिर हम फाउंड्री रिलेटेड हैं. रिलेटेड, तो जब रिलेटेड है तो इसका मतलब है इनके दरमियान ज्यादा जॉब फ्लो करती हैं. हमें ज्यादा मटेरियल पैटर्न से फाउंड्री की तरफ जाता है और फिर फाउंड्री से कभी पैटर्न की तरफ वापस भी आता है कि पैटर्न ठीक नहीं बना, दोबारा बनाओ वगैरह वगैरह. राइट. तो अगर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो जॉब, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी. यस सर. तो हमें उन डिपार्टमेंट्स को, उन प्रोसेस एरियाज को करीब रखना चाहिए जो आपस में ज्यादा रेलिवेंट हैं. और ये रेलेवेंसी कैसे डिफाइन होती है? कितने प्रोडक्ट्स मूव करते हैं एक शॉप से दूसरी शॉप की तरफ. हाउ डू वी कलेक्ट दैट डाटा? वो डाटा हमें कैसे मिलेगा? फ्रॉम प्रीवियस हिस्ट्री. अगर हम पुराने ऑर्डर्स देखें तो हमें पता चलेगा कि कौन कितनी जॉब्स किस वर्क सेंटर से किस वर्क सेंटर को मूव की, किस प्रोसेस एरिया से किस प्रोसेस एरिया की तरफ मूव की. ऐसे ही होगा. Okay. We have to collect past data and we have to identify the relevance between the different sections. And then what should we do? What is the trick? We should place departments that are more relevant with one another close to one another. And in this way, we'll be able to reduce on the total material handling cost. So this is what we want to do. Please go to this slide. Read this slide now. But there are two things that we are interested in. How many loads, how many jobs move between different work centers? And then we are interested in what is the distance each job has to travel and what is the cost against that. इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मिल जाएगी. डिपार्टमेंट वर्क सेंटर्स के दरमियान कितनी जॉब्स मूव की और वो कितने दूर है एक दूसरे से, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा ट्रेवल करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होगी. And then what we do? We try to minimize on this cost. So X is the number of loads that move between work centers. And C is the cost of moving a single work center, a single load between two work centers A and B, I and J. When we take the product of these two, we'll be able to find the material handling cost between work center I and work center J. But we have to do that for the entire facility, so we'll keep on changing the value of I and J. I'll show you that in a moment. और हम फिर एक ऐसा लेआउट आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए. So that's how we will design process oriented layout. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. Yes, sir.
ठीक है, सही है। तो हम ये पर्टिकुलर काम है, तो हमें हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करना है। तो एक हिस्टोरिकल डाटा आप लोगों के सामने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फैसिलिटी में 6 shops हैं, there are 6 shops in a particular facility, and we've gathered data how many parts move between different work centers. So I've got the same names over here and the same I've got 6 blocks over here, and I've labeled them as 1, 2, 3, 4, 5, 6: assembly, printing, machine, receiving, shipping, and testing. So 50 over here means that 50 parts have moved from assembly shop, between assembly shop and painting shop. तो assembly और painting के दरमियान कितने loads move किए? 50. 50. हेलो हेलो वायरस कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है। बस खत्म शो। और खतरनाक हो सकती है। जानलेवा भी हो सकती है। इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? साबुन का इस्तेमाल। हमारा बस खत्म शो। Okay. So the connection just went away. नहीं खत्म हुई, मैं अनाउंस करता हूँ कि क्लास खत्म होती है। Right, so the connection just went away. Right, so we'll try to start from where I left you guys. Okay, somewhere it just went away. Okay, so class कितनी देर पहले मैं disconnect हो गया था? Were you able to see this slide when I disconnected? यस सर, ये Yes, sir. ये सर ये 60 पास जब मूव हुए थे असेंबली 1 और असेंबली 2 में, यहाँ पे ये पेंटिंग और असेंबली में 60 पास यहाँ पे। अच्छा, गुड, ठीक है, तो बस सही है। तो दिस इज द मैट्रिक्स, राइट? सो असेंबली और पेंटिंग 50 parts have moved, असेंबली एंड मशीन शॉप 100 parts have moved. कौन सी ज्यादा रेलेवेंट है? असेंबली और मशीन। असेंबली और मशीन ज्यादा रेलेवेंट है। तो हमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को अगर रिड्यूस करना है तो हमें असेंबली और मशीन को एक दूसरे के करीब प्लेस करना चाहिए ना? यस सर। यस सर। सही है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। ठीक है, सो वी हैव टू लुक एट द कंप्लीट मैट्रिक्स। हमें पूरी मैट्रिक्स देखनी होगी। इसके अलावा और कौन सी रेलेवेंट है? मशीन शॉप और टेस्टिंग भी एक दूसरे से ज्यादा रेलेवेंट है ना? यस सर। सही है, तो हमें जब लेआउट डिजाइन कर रहे हो तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो लुक एट दीज नंबर्स and machine areas or work centers or process areas that are more relevant should be placed close to one another. If you are able to do that, we'll be able to make a layout for which the material handling cost is a minimum. You've understood the basic process. Let's look at a problem. So there's an example. This is an example of your book, from your book, and you guys have to go through this example yourself. I'm going to discuss a kind of more complex problem compared to this problem. Yeah, so please read the statement now. This is the final thing we are doing today. बस ये आखिरी चीज है जो हम करेंगे। 10 मिनट लेगा मैक्सिमम। So what do we have got? We've got the basic floor space available, the size available. It's a 90 feet long and 40 feet wide facility. तो इस तरह की facility है। ठीक है, this is 90 feet and this is 40 feet. And we have to divide that into 6 equal areas, which has already been done.
तो इसको इक्वल एरियाज में डिवाइड करने के लिए ये भी इक्वल एरियाज हो गए 6 वर्क सेंटर्स के। जी सर, जी बिल्कुल। ठीक है, so what will be the size of each block? 30 into 20. Right. बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। 90 by 40 है and we've divided that 90 by 3 and 40 by 2 and we've got a 6 block area. बिल्कुल Right. सर। Then it says the material handling equipment can only move clockwise on marked pathways. So the pathways that have already been marked on that facility. And what is the cost of movement? It's $1 for every 10 feet. That means if I move 30 feet, what will be the cost? $3. $3 सर। Okay, so this Yes, sir. is the layout यस facility. सर। Okay, these inner blocks that you see are marked pathways. So ये pathways हैं जिनके ऊपर product move कर सकता है. We cannot move diagonally, for example. इस तरह move नहीं कर सकते. If I want to go from room number 1 to, let's say, room number 5, I have to follow this path. Understood? समझ आई? यस सर। Yes, sir. ये भी जी ऐड रहा हूँ। Like all the way direction खराब है भैया क्लास। Can you guys hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sorry again, some electricity issue again. But okay, right. Okay, so if this is work center 1, room number 1, and this is room number 5. So when I want to go from room number 1 to room number 5, this is a path that I would have to take. यहाँ तक आपने मेरी आवाज सुनी थी ना? Yes, sir. Yes, sir. Good. Right. So how much distance do I travel? I travel 30 feet over here, because remember this was 30. And we were assuming that these work centers are, or these marked pathways are right at the center of these rooms. That's an assumption I'm making, right? So this would be 30 and this distance would be 20. So what is the total distance I travel when I move from room number 1 to room number 5? 50. 50. And what would be the cost of movement from room number 1 to room number 5? $5. $5. Okay. Similarly, if I want to move from room number 1 towards room number, let's say 3, what would it cost? $6? Yes, sir. 3 feet plus 3 feet is $6, 60. 30 feet plus 30 feet is 60 feet, which is $6. So that means this is a better place for room number 1 and room number 3 is higher than the cost between room number 1 and room number 5. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir.
ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही एक लेआउट सोचा हुआ है और मैं उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करूंगा अभी आप लोगों के साथ थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल बस हम ये करते हैं। तो हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ मूवमेंट बिटवीन रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2, रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 3। ओके, इफ आई वांट टू मूव बिटवीन रूम नंबर 2 एंड 1, रूम नंबर 2 से रूम नंबर 1 की तरफ जाना चाहता हूं, कितनी कॉस्ट आएगी? सर $3। $3। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की तरफ वापस चलो, ये आपको कुछ बताता है। सर क्लॉक को सिर्फ जा सकते हैं हम सर। क्लॉकवाइज सिर्फ जा सकते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शन है ना। So when we design layouts, we must be aware of the material handling equipment, and that's exactly what I'm telling you right now. तो सिर्फ क्लॉकवाइज जा सकते हैं, तो फिर कितनी कॉस्ट आएगी? सर फिर तो बहुत आएगी सर। देखो, we'll move like this. ये क्लॉकवाइज हो गया ना, तो $2 here, $2 here, and $3 over here. What would be the cost? $7। $7। तो इस तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को दोबारा देखें तो इसमें हम कॉस्ट भी तो लिख सकते हैं ना, द कॉस्ट ऑफ मूवमेंट बिटवीन रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2, लेट्स से दैट इज $3। द कॉस्ट ऑफ मूवमेंट बिटवीन रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 1, दैट इज $7। तो हम हर ब्लॉक में कॉस्ट भी तो लिख सकते हैं ना। यस सर। कॉस्ट ऑफ मूवमेंट फॉर अ पर्टिकुलर लेआउट। यस सर, ये भी हो सकता है। ओके, एंड वी कैन ब्रिंग इन द लोड्स एज वेल। तो चलो ये 3 और 7 में थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूं। राइट, तो अब हमने क्या करना है, हाउ डू वी कैलकुलेट द कॉस्ट? We multiply how many loads move between two work centers and what is the cost of moving a single load. So we can do a 50 into 3, and that would be give me the cost of movement between assembly shop and painting shop. And we can do a 30 into 7, that would give me the cost of movement between painting and assembly. And we can do that for all the items over here. Yes, सब के लिए कर लें और ऐड कर लें तो ओवरऑल टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। यस सर। सही है? यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल। ओके, और हम यही काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सब कुछ अवेलेबल है ना। विल थिंक ऑफ अ लेआउट। लेट्स से हमारा लेआउट यही वाला है। मैं कहता हूं असेंबली शॉप रूम नंबर 1 में हो जाए, पेंटिंग रूम नंबर 2 में हो, मशीनिंग रूम नंबर 3 में हो, रिसीविंग रूम नंबर 4, शिपिंग रूम नंबर 5 और टेस्टिंग रूम नंबर 6. So I've identified a layout for myself. I can evaluate the cost of this layout. कर सकते हैं आप लोग ये काम? Yes sir. And then you can calculate the total cost. Once you've calculated the total cost, then you'll try to minimize on this cost. आप देखेंगे ये लेआउट अच्छा है या कॉस्ट इससे कम की जा सकती है। You will think of another layout. आप एक और लेआउट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, लेट्स से आप कहते हो कि असेंबली और मशीनिंग को एक दूसरे के करीब होना चाहिए, तो आपको रूम नंबर 2 में मशीनिंग रख देता हूं, रूम नंबर 6 में पेंटिंग रख देता हूं, रूम नंबर 4 में टेस्टिंग रख देता हूं। ये एक डिफरेंट लेआउट हो गया। Yes, This is sir. a different layout now. Yes? Sir. Yes sir. ठीक है, and based on this layout you have to calculate the total cost again, and in this way through hit and trial you'll be able to minimize the total cost. Understood? Yes sir. ठीक है, and that is your assignment. ये आप लोगों की assignment है. So you have to solve this problem based on the given data and based on this process layout example 2. You have to give 2 hits. आप लोगों ने 2 डिफरेंट लेआउट्स के लिए टोटल कॉस्ट एवेल्युएट करनी है। ठीक है, अब हर बंदा एक डिफरेंट लेआउट सोचेगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी, क्या सोचना होगा। जहां पर ज्यादा मूवमेंट है लोड की उनको करीब रखो, जहां पर कम मूवमेंट है उन्हें दूर रखो, तब भी फर्क नहीं पड़ता। पर आपने एक ओवरऑल टोटल कॉस्ट एवेल्युएट करनी है। ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव टू डू 2 हिट्स, 2 दफा आप लोगों ने एवेल्युएट करना है। लोड की मूवमेंट जरा बता दें, किस तरफ पता चलेगा ज्यादा। देखो ये है ना, ये नंबर्स यही तो बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 100 क्या डिफाइन करता है कि मशीन शॉप
और टेस्टिंग शॉप के दरमियान 100 पार्ट्स मूव हो रहे हैं। ये नंबर लोड्स बता रहे हैं, कॉस्ट नहीं बता रहे। कॉस्ट मैंने हाथ से लिखी थी ना, ये देखो नंबर ऑफ लोड्स मूव्ड लास्ट मंथ। ठीक है, सर इसमें ये किस तरह पता चल जाए कि मशीन शॉप और टेस्टिंग के दरमियान ये 100 लोड्स ट्रांसफर हो रहे हैं? देखो ये फ्रॉम है और ये साइड 2 है। तो अगर मैं ये मशीन शॉप देखूं और यहाँ एक लाइन लगाऊं और यहाँ टेस्टिंग चला जाऊं, तो इसका मतलब है 100 पार्ट्स मूव बिटवीन मशीन शॉप एंड टेस्टिंग शॉप। यस सर समझ आ गया। ये तो हमने रीड करना शुरू में देखा था ना। यस सर भी समझ आ गया। सही है, ओके। आगे बात समझ में। सो ऑल ऑफ यू हैव टू डू 2 हिट्स। और किस तरह आप बिल्कुल सोल्यूशन किस तरह दोगे, आप पेजेस के ऊपर ये काम करोगे, उसके स्नैपशॉट्स लोगे और गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दोगे। मैं इस असाइनमेंट को अनाउंस कर रहा हूँ। I'll put it on Google Classroom as well so that you can submit the replies under that particular assignment. आ गई बात समझ में? यस सर। ओके सर ये थर्ड कॉलम में जब हम मशीन शॉप में नीचे आएंगे टेस्टिंग के साथ देखेंगे जी अबाउट ये जी। और सर जब हम रो वाइज जाते हैं मशीन शॉप में और ऊपर जो है कॉलम से टेस्टिंग वाले शॉप में देखते हैं तो वहां पर 100 है। ठीक है, तो ये अलग-अलग नंबर्स है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मशीन शॉप से टेस्टिंग शॉप की तरफ 100 पार्ट्स जा रहे हैं और ये 40 जो है, इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग शॉप से मशीन शॉप की तरफ 40 आइटम्स जा रहे हैं। Because the cost of movement between testing and machine shop might be different from the cost of movement between machine shop and testing. क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो जब हम असेंबली से पेंटिंग की तरफ गए तो कोई और कॉस्ट आई ना, और जब हम पेंटिंग से असेंबली की तरफ आए तो कोई और कॉस्ट आई। तो क्योंकि ये कॉस्ट डिफरेंट है इसलिए हम इनको इन दोनों चीजों को अलग हेडिंग्स में लिखा हुआ है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? सर ये इनमें जो मूविंग पार्ट्स है उधर 100 है और इधर 40 है। हाँ, तो देखो इसका मतलब ये है कि रूम नंबर 1 से रूम नंबर 2 के दरमियान 100 पार्ट्स गए। 1 से 2 के दरमियान कितने पार्ट्स मूव हुए? 100। और टेस्टिंग से रूम नंबर 2 से रूम नंबर 1 की तरफ वापस कितने पार्ट्स गए? 40। बाकी कहीं और चले गए। ओके सर। अब समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो हम डायरेक्शन का भी ख्याल रख रहे हैं। पर्सन ए से पर्सन बी तक कितने पार्ट्स गए और पर्सन बी से पर्सन ए की तरफ कितने पार्ट्स गए। दे नीड नॉट बी द सेम। और ये अलग-अलग नंबर्स हैं, इसीलिए कंप्लीट मैट्रिक्स है। इसके मुकाबले में the example that your book solves is a relatively easy example. I'll show you the table for that as well. Okay, so here because the material handling equipment is not direction dependent, तो हमने बस एक साइड ऑफ द मैट्रिक्स फिल किया है, यहाँ कोई नंबर्स नहीं है। ये 50 का मतलब ये है कि असेंबली और पेंटिंग के दरमियान इतने पार्ट्स मूव हुए, कितने असेंबली से पेंटिंग की तरफ गए, कितने पेंटिंग से असेंबली की तरफ गए। हम इस ब्रेक डाउन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम ओवरऑल नंबर में इंटरेस्टेड है। आई बात समझ में? सर ये फिर से बता दें। देखो यहाँ पर जो है ना आपको सिर्फ एक साइड पे नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये ब्राउनिश एरिया में कोई नंबर नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्शन डिपेंडेंट फ्लो नहीं मॉनिटर कर रहे। असेंबली से पेंटिंग के दरमियान इतने पार्ट्स मूव हुए, चाहे वो असेंबली से पेंटिंग की तरफ गए हो चाहे वो पेंटिंग से असेंबली की तरफ गए हो, कंबाइन करके मैं आपको ये नंबर बता रहा हूं। ठीक है, और वो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि असेंबली और पेंटिंग के दरमियान वही कॉस्ट है जो पेंटिंग और असेंबली के दरमियान मूवमेंट की कॉस्ट है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी आप मूव कर सकते हो, इसमें भी मूव कर सकते हो। तो अब हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड होंगे ना कि इन दोनों के दरमियान कितने पार्ट्स मूव हुए। हम ये तो नहीं स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड होंगे कि असेंबली और पेंटिंग के दरमियान कितने मूव हुए और पेंटिंग और असेंबली के दरमियान कितने मूव हुए। इस बात का क्या मतलब? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लॉकवाइज या एंटी-क्लॉकवाइज? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये इसने कहा हुआ है अरेंज 6 डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री टू मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट and the size of each block is 20 by 20 feet. बस। तो रिस्ट्रिक्शन जहां नहीं हो इसका मतलब है मेंशन ना की कोई, इसका मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
और यही रिस्ट्रिक्शंस मैंने इस सवाल को मॉडिफाई करके डाल दी ताकि आपको वो बातें भी बताई जा सके। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? चलो एक स्टेप आगे जाते हैं इससे भी। इफ आई रिमूव दिस स्टेटमेंट, let's say I am removing this, not for your assignment, but for the time being. So the material handling can move clockwise as well as counterclockwise. So then 50 parts move between assembly and painting. And let's say assembly is in room 1 and painting is in room 2, for which the cost is $3. Take. And what is the cost between painting and assembly if movement in the backward direction is also allowed? It's also same $3. वही cost. $3. Same cost, $3. So when we want to evaluate the cost, I'll write a 30 into 3 as well. Yes, sir. ठीक है. Yes, So sir. if I know basic maths, I can then, instead of writing these two numbers separately, I can write an 80 over here and get rid of one side of the matrix. Yes, sir. Yes, sir. आप समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यही हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है इसलिए हमने दोनों साइड को अलग-अलग डेटा आप लोगों को दिया है। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शन ना होती तो हम सारे नंबर्स को कंबाइन करते और यहाँ पर कुछ नजर ना आता और इन सारे नंबर्स का इफेक्ट आपको अपर मैट्रिक्स में नजर आ जाता। सर इस टेबल को ग्रे और ऑरेंज नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ नजर आने के लिए। अच्छा ठीक है, बस वैसे ही खूबसूरत लगने के लिए। ओके सर। ठीक है, ओके, और कोई सवाल? Okay, कोई सवाल नहीं। Okay, so then a very important announcement that I have to make. In the very first class, I said we are going to have presentations in this particular course, and you have to bring in practical examples of stuff related to operations management, and you have to discuss that with the class. The time span for that is minimum 5 minutes, maximum 6 minutes. बस 5 मिनट तक की प्रेजेंटेशन आपने देनी है। आपने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना है जो रेलेवेंट हो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के साथ, किसी भी एस्पेक्ट के साथ, और प्रैक्टिकल एग्जांपल देनी है। फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको कहा अमेज़न, हम वेयर हाउस लेआउट डिस्कस कर रहे थे और मैंने कहा अमेज़न को जरा पढ़ो, तो वन ऑफ द टॉपिक्स कुड हैव बीन अमेज़न, और आप हमें आके बताओ कि अमेज़न एग्जैक्टली किस तरह काम करता है। ठीक, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया ओवर हियर, not saying you guys, all of you start doing this Amazon. A topic that has been presented already would not be presented again. So we want to learn from each other and we want to learn about as many examples as possible. We are going to start that from next week inshallah. अगली क्लास से हम ये प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हर हफ्ते 6 लोग प्रेजेंट करेंगे। How many of you would present? 6 people would present. What would be the sequence? तो अगर आप गूगल क्लासरूम में जाओ तो आप सब लोगों के नाम एक पीपल टैब में नजर आते हैं और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, तो हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो उस गूगल क्लासरूम में जो पहले 6 लोगों के नाम नजर आ रहे हैं वो अगले हफ्ते प्रेजेंट करेंगे और इसी सीक्वेंस में आप लोग अपना नंबर आइडेंटिफाई करोगे। आई वुड नॉट मेक दिस अनाउंसमेंट एवरी वीक कि अगले हफ्ते कौन कौन प्रेजेंट करेगा। हाउ डू यू प्रेजेंट? जस्ट लाइक आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू गाइज, you guys can make up to 4 slides yourself. Slides आपने खुद बनानी है, contents आप ढूंढोगे नेट से, अखबारों से, जहां से भी ढूंढना है, और उसके बेस पे 4 स्लाइड्स बनाओगे, मैक्सिमम 4 स्लाइड्स, और उनके थ्रू प्रेजेंट करेंगे। Do you want to turn on your camera, video camera on or off? That's totally up to you. If you want to turn it on, I've got no objection with that. Okay, but you have to present for 5 minutes. The mode of communication would be English. You're not allowed to speak in any other language. Please do not write stuff and do not read it from that piece of paper. So if you're reading from a piece of paper, I would know that instantaneously. बहुत clearly पता चलता है। आपको लगता है मैं इस बुक से, कोई कागज है मेरे सामने और मैं उससे पढ़ रहा हूँ? No sir. नहीं लगता ना? ठीक है, और जब मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा तो आपको फौरन पता चलेगा कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, so you have to practice, but you don't have to read from that piece of paper.
Right. Okay. So for maximum slides, mode of communication is English. What is the weightage of this particular exercise? It's almost as important as your mids. It has got 15% weightage of your सेशनल्स. आपके सेशनल का टोटल वेटेज 30% है, उसका 15% ये प्रेजेंटेशन होगी, जो मैं आज से कोई 4 महीने पहले अनाउंस कर चुका हूँ. और मुझे आई एम होपफुल कि आप में से अक्सर लोगों ने ऑलरेडी अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए होंगे और कंटेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए होंगे. अगर आपने नहीं किया तो यू हैव टू वर्क हार्ड ओवर द कमिंग डेज and make sure that you get maximum marks out of this exercise. I'm going to mark you on the contents that you present. I'm going to mark you on the way you present. And the third thing I'm going to mark you on would be the way you respond to any potential questions. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका यह मतलब है कि शायद आप इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं कर सके हमारा उस पर्टिकुलर टॉपिक में. ठीक है, तो try to develop interest in that whatever you are presenting. Clear? ठीक है? Yes, sir. So the first 6 guys. Yes. ठीक है. So the first 6 guys are going to present in the coming week, and we're going to continue with that. I'm not going to make that announcement every week कि अगले हफ्ते कौन present करेगा. ठीक है? Thank you very much, all of you.